I don't know what's wrong with it. Just give me 2 minutes more. Actually, I was on the way. Just now only I entered it home. I don't know what's wrong with my internet. I'm just trying my best. Okay. By the way, I hope all of you are fine and doing hunky dory. I don't know. Okay, no problem at all. So by the way, today I'm going to have here self-introduction. I hope you're listening me well. Yes, sir. Good. Okay. Now today I'm going to share with you here self-introduction in English. How do you introduce yourself in English? आप लोग अपने आप को introduce कैसे करते हैं? Yes? Can you please tell me? How do you introduce yourself? आप अपने आप को introduce कैसे करते हैं? Anyone from the participants? I can see here many of the people are there. So how do you introduce yourself? Can you please tell me in English? आप अपने आप को English में introduce कैसे करते हैं? Anyone would like to share with me the introduction? कोई है? माइका लाल, अम्मी का लाल. Yes, Mr. Ramiz. Hello. Hello. Anyone? Mr. Muzammil, Miss Shaima, Miss Labina, Miss Mahek, Mr. Nazim. Anyone? Hello, dear friends. My name is Labina Khan. I'm from Pune and I'm a MSc student. Okay. So like this, you give your introduction, right? Yes, sir. Okay. Anyone else? Next. Who else wants to introduce? Good evening, everyone. Yes. My name is Ayush Srivastava. I'm from Indore, and I have done. Hello. Yes. 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 Continue, please. Okay. I have done my schooling, and right now I'm working. And a little bit my family background. There are 5 members in my family. My father is in a sales job. My mother is a housewife. My brother is in pursuing MB also. My younger sister is pursuing BCom. And a little bit about my hobbies. So I want to listen to music. Then I want to play the guitar, and I want to play the cricket also. And thank you. Good one. Nice. Okay, next, Mr. Muzammil, Mr. Ramiz, Miss Shaima, Mr. Azim. Yes, Mr. Ramiz. How do you introduce yourself? Introduce, please. In any words, हाँ? ऐसा कोई compulsory नहीं है. जो भी आप लोग अभी तक के आपका introduction देते थे, मुझे वो सुनना है. So on behalf of that, I'm going to show you international introduction. Hello. Yes. Speak up. Am I audible? Sir. Hello. Yeah. Speak up now. Okay. So my name is Ramesh Tamboli. I'm from Pune. I'm a working professional. I'm working as a data scientist in the math company. So in my family, I have 4 members, including my mom, dad, and my small sister. She's in college and she's doing her graduation. And yeah, that's about me. Okay. Next, Miss Shaima. Next one. Hello. Yeah, madam. Hello. Speak up. Hello, I am Shaima Sheikh. I am from Pune, and my dad has travel business, and my mom is housewife. And I have recently completed my MSc from Abhidananda Senior College, and that's it. That's all about me. Okay, that's really good.
All right, I can see here some of the students are new to me and some of the are my acquaintances too. Okay, let's go for the next one. Now today I'm going to share with you most of the so one of the most important point, and that's what self-introduction in English. Today is what 4th of May, right? So I hope you are able to see my screen. Are you able to see my screen? Yes. Yeah. Yes, sir. So today we are going to have here self-introduction, the first chapter of our English. Okay. Now, first of all, जब कभी आप लोग कहीं पर भी जाते हैं, आप लोग parties में जा रहे हैं, if you're going to any concert, any festival, means any festivals, occasion, any party, any college, any interview, or anywhere you're going, people are going to ask you the first and the most important thing, that's what your self-introduction. And how do you introduce yourself? It matters a lot. अब अपना आपको आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. सो योर सेल्फ इंट्रोडक्शन मैटर्स अ लॉट. हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर ही लोगों का कचरा हो जाता है. कैसे होता है, क्यों होता है, मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि छोटी छोटी बातें पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता नहीं है. नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू वन ऑफ माय इंसिडेंट्स. एक मरतबा क्या हुआ, आई वेंट टू कॉलेज एंड दैट इज व्हाट SNDT कॉलेज इन कोथरूड. इट इज फ्रेंचाइजी ऑफ मुंबई कॉलेज. मुंबई का कॉलेज है वो, एंड इट इज द कॉलेज ऑफ टीचर्स. वहाँ पे टीचर्स लोग को पढ़ाया जाता है. टीचर्स बनाते हैं वो लोग, मीन्स व्हाट दे प्रोड्यूस टीचर्स हाउ टू टीच. तो मैं वहाँ पर गया था वो टीचर्स लोगों को पढ़ाने के लिए कि पढ़ाते कैसे हैं. ऊपर वाले ने दिया मुझे अपॉर्चुनिटी एंड आई वेंट देयर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोमेंट व्हेन आई एंटर्ड, अब आप लोग कुछ लोग सोचते होंगे यार मैं इंटरव्यू के लिए गया था, मैं फेल हो गया, मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहा हूँ, क्या यार मैं हैंडसम नहीं दिखता हूँ, क्या क्या यार मैं मेरा क्वालिफिकेशन अच्छे नहीं है, क्या यार मैं थोड़ा कुछ गलत बोलता हूँ, क्या मेरा कम्युनिकेशन है कि लैकिंग करता है, कि मैं फेल क्यों हो गया, इतना अच्छा ड्रेसिंग करके गया था, ये करके गया था, वो करके गया था, फिर भी मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया. आपको पता है यू आर गेटिंग रिजेक्टेड इन एन इंटरव्यू फॉर माइनर माइनर मिस्टेक्स. रिमेंबर दिस. आप लोग माइनर माइनर मिस्टेक्स के लिए, छोटी से छोटी मिस्टेक्स के लिए आप लोग इंटरव्यू के अंदर फेल हो जाते हैं, आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं. क्यों? एक छोटी सी मिस्टेक के लिए. दैट मिस्टेक आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू टुडे. सो जब मैं वो कॉलेज में गया तो उन लोगों ने पहले तो मुझे इंट्रोड्यूस वगैरह किया. तो जैसे ही मैं वहाँ पर कॉलेज में के स्टेज पर मैं चढ़ रहा था, उनके क्लासरूम का जो उसका हॉल के जो स्टेज पर मैं चढ़ रहा था, तो इट वॉज द टाइम 12:45. गौर से सुनना, इट वॉज द टाइम 12:45 PM. 12 बजकर, इट वॉज 12:45 PM. ओके. यहाँ पर हम लोग विश क्या करेंगे? Good afternoon. करेक्ट, गुड आफ्टरनून. वहां पे गलती से एक मैडम ने क्या किया, वहां पे मुझे विश कर दिया मैडम ने, गुड मॉर्निंग सर. हो गया कि नहीं कचरा? वो बाद में बोला अरे यार भाई, मैंने सर को यार गुड मॉर्निंग बोल दिया, टाइम क्या हो रहा है, बाकी की उसकी सहेली बोली आगे एडी क्या कर रही है. मीन्स व्हाट, अल्टीमेटली एक छोटी सी चीज मुंह से गलत निकली भी हमारे लिए जहर बन सकती है. अल्टीमेटली द फर्स्ट पॉइंट इज कमिंग फॉर आवर सेल्फ इंट्रोडक्शन, दैट्स व्हाट विश. हमारे पास में विशिंग ही गलत है, हमारे पास में विशिंग गलत है. हम लोगों को यही पता नहीं है कि विश कब, कौन सा, कहां पर क्या करना है. पॉइंट नंबर 1, if you see here, the moment when you are introducing yourself, you should know first wishing. अभी जैसे कि मैंने अभी सब लोगों का, मैंने कुछ लोगों का मैंने इंट्रोडक्शन लिया था, उसमें से एक ने भी विश नहीं किया था. I'll tell you, wishing is really very very important. Point number 1, आप लोग कहीं पर भी जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, वहाँ पे सबसे पहले जो आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे उसके लिए विश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और हमारे पास में जो विशिंग है, मतलब लोकल इंग्लिश में, आधे से ज़्यादा रॉन्ग है. पॉइंट नंबर 1, इफ यू सी हियर, एज यू कैन सी हियर इन द फाइल. अब मैं आज आप लोगों को, ये हमारी फाइल है, ये मैंने खुद ने डिज़ाइन किया हूँ, मतलब हमारी टीम ने डिज़ाइन की है पूरा ये फाइल. गेटिंग इट? ये हमारी खुद की फाइल है, ये फाइल आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, जिसके जरिए हम लोग पढ़ेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस वन, आई विल बी शेयरिंग विद यू सम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज बुक्स. ओके, क्योंकि मैं एक भी इंडिया की बुक फॉलो करता नहीं हूँ, आई फॉलो ओनली इंटरनेशनल बुक्स, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज. सो दिस इज योर सेल्फ इंट्रोडक्शन गाइज. ये आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन है. इसके अंदर जैसे कि भी आप लोग देख रहे हैं, द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, विशिंग. यहाँ पे आपको सबसे पहले विश करना है. आज से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा विश आधे से ज्यादा गलत होता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी आस्क यू सम सिंपल क्वेश्चन. सुबह रहेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी प्लीज, मुझे आंसर फटाफट फटाफट चाहिए. यस, करेक्ट, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम. अगर आदमी रहेगा तो सर बोलेंगे, औरत रहेगी तो मैडम बोलेंगे. ओके, मैम बोलना नहीं. क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ, बहन, बीवी, बाजू वाली, आजू वाली, सहेली, घर वाली, गर्लफ्रेंड वाली, ऐसी कुछ नहीं है वो. क्योंकि मैम किसको बोलते हैं? सिर्फ जो पहचान वाले लोग रहते हैं उनको मैम बोलते हैं. बाकी बाहर वाले जितने भी हैं सबको क्या बोलेंगे हम लोग?
मैडम. ओके, जो पहचान वाली है सिर्फ उसको मैम बोलने का, बाहर वाले को मैडम बोलेंगे. सो बाय द वे, सुबह रहेगी तुम लोग क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग. दोपहर रहेगी तो Good afternoon. करेक्ट, वी से देयर गुड आफ्टरनून. एंड शाम रहेगी तो Good evening. करेक्ट, ये गुड इवनिंग. मीन्स व्हाट, अल्टीमेटली यहाँ पे तक तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, मतलब हम लोग को इतना आता है. वेरी नाइस. पॉइंट नंबर सेकंड इज व्हाट, अगर आप लोग देखेंगे अगली चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सपोज इफ योर बॉस इज देयर एंड ही इज कॉलिंग यू एट नाइट. अब आप लोग फॉर एग्जांपल, अभी आप लोग जैसे कि इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, एक बात याद रखना है, जब कभी भी आप लोग मेरे क्लास में लॉग इन करेंगे, आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है, दैट यू आर नॉट इन इंडिया. सिर्फ माइंड से, आप इंडिया में नहीं है, आप लोग फॉरेन कंट्री में, एंड दैट्स व्हाट, you are literally learning an international language. So ultimately, you should be here with international mindset. Okay? Suppose your boss is calling you at night 11:45 p.m. What are you going to wish? Only new लोग आंसर देंगे, जो old students है मेरे वो आंसर नहीं देंगे. Okay? Yes, only new people. 11:45 p.m. रात के 11:45. गुड इवनिंग. Yes. गुड इवनिंग सर. अरे मुजम्मिल, अरे इस्माइल, अरे बीच में नहीं घुसने का. अपन पुराने चावल हैं. न्यू लोगों को चांस दो भाई, न्यू लोगों से पूछ रहा हूँ मैं. यहाँ पर इन लोगों ने आंसर दिया है गुड इवनिंग. ओके, इफ यू सी हियर, कैन यू से गुड इवनिंग? रात के 11:45 हो रहे हैं, हम लोग गुड इवनिंग बोलेंगे कि गुड नाइट बोलना चाहिए मिस्टर अमीज? गुड इवनिंग. गुड इवनिंग ही बोलेंगे. क्यों नाइट नहीं बोल सकते मिस लबीना? Good night से सिर्फ conversation ही खत्म हो जाएगा. एग्जैक्टली राइट. हमारे यहाँ पे कुछ लोग जो है ऐसे, हमारे पास में 1.5 शाने हैं हाँ, जो आके बोलेंगे अरे रात हो रही ना, गुड नाइट बोलना चाहिए. एक्चुअली गुड नाइट बोलेंगे, वहां से कॉन्वर्सेशन खत्म ही हो जाएगा. वो गुड नाइट इज लाइक टाटा. वी कैन से गुड नाइट ओनली व्हाइल गोइंग. आते हैं उसमें गुड नाइट कभी बोलते नहीं है. सो पॉइंट नंबर 1, इफ योर बॉस इज कॉलिंग एट 11:45 p.m. you are going to say there, good evening sir, good evening madam, good evening sir, good evening madam. Getting it? Second thing, अब वही बॉस है आपका, and that boss is just aborting your call at 11:50 p.m. अब आपका फोन रख रहा है वो. What are you going to tell him? अब फोन आपका रख रहा है, क्या बोलेंगे हम लोग? आफ्टरनून. रात को 11:50 पे आपका फोन रख रहा है सर वो. मिस्टर जय, गुड नाइट सर. करेक्ट. यहाँ पे हम लोग उसको बोलेंगे गुड नाइट, और गुड नाइट बोल के उसको हम लोग फोन को रख देंगे. मीन्स व्हाट, उसको हम लोग हकाल देंगे. मीन्स व्हाट, हम उसको बोलेंगे जाओ भाई गुड नाइट, सो सकते हैं. नेक्स्ट वन, नाउ अनदर बॉस इज देयर एंड ही इज कॉलिंग यू एट 12:05 a.m. अब आपका एक बॉस है जो आपको 12:05 पे फोन कर रहा है. रात के 12:05 पे आपको फोन कर रहा है. व्हाट आर यू गोइंग टू विश हिम? मिस शाइमा, मिस्टर अमीज, मिस्टर जय. करेक्ट, यू आर गोइंग टू विश हिम गुड मॉर्निंग. आप लोग बोले अरे यार ये क्या था, रात के 12 बज रहे फिर भी मॉर्निंग बोल रहे हैं. यस, व्हाई? व्हाई? After 12 p.m. days change. Correct. After 12 a.m. at night, the day changes. रात के 12 बजे के बाद में दिन चेंज होता है. आप लोग विश करते हैं ना रात को 12 बजे जाग के, हेलो डार्लिंग, हेलो हाउ आर यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे. एक्चुअली दैट्स व्हाट, रात के 12 बजे के बाद में दिन चेंज होता है. द डे चेंज, द डेट चेंजेस, एंड दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू से गुड मॉर्निंग. Yes, it is a fact. Next one, same boss is there and he is aborting your call right now at 12:10 a.m. अब वही बॉस है, आपका फोन रख रहा है, आप उसको आप क्या बोलेंगे? थोड़ा ट्रिकी है ना, इसके लिए आपके पास में एक अच्छा वॉच होना चाहिए एंड यू शुड नो टाइमिंग्स. यस, अब वही बॉस आपका फोन रख रहा है, क्या बोलेंगे? Good night. एब्सोल्युटली गुड नाइट. अब आपकी सहेली अगर आगे बाजू में अगर आपके खड़े रहेगी तो क्या बोलेगी? अरे सर पे गिर के गए. बोले क्यों? बोले अभी तो गुड मॉर्निंग बोल रही थी, अभी गुड नाइट बोल रही है. वो बेचारी सहेली जो रहेगी वो 17 नंबर स्कूल की रहेगी, उस बेचारी को पता नहीं रहेगा कि ऐसा भी रहता कुछ. तो सॉरी टू से दिस. व्हाई? बिकॉज इंटरनेशनली ऐसा ही चलता है. सो व्हाट आर यू विशिंग योर बॉस, इट मैटर्स अ लॉट. आप आपके बॉस को क्या विश कर रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा मैटर करता है. अगर आप लोगों ने गलत विश किया, आप लटक गए समझो. नाउ अब आप लोग इंटरव्यू में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यूअर कॉल्स यू एट 11:30. आपको इंटरव्यू में बुलाते हैं 11:30 बजे सुबह में. 11:30 बजे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया. डायरेक्ट आते के साथ में इंटरव्यू तो लेते नहीं, आपको थोड़ी देर टाइम पास करने के लिए लगाते हैं वो लोग. रिसेप्शन पर बैठो, टाइम पास करो. एंड सपोज दे आर कॉलिंग यू इनसाइड 12 p.m. आपको एग्जैक्टली 12 बजे उन लोगों ने अंदर बुलाया. व्हाट आर यू गोइंग टू विश हिम? Good afternoon. करेक्ट. Good आप ऐसा विश afternoon. करेंगे, आप ऐसा विश करेंगे और डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएंगे. वेरी नाइस. क्यों?
उसकी वजह क्या है? वजह तुम हो। यस, ऐसा विश करेंगे और रिजेक्ट हो जाएंगे, यही तो वजह है। हम लोग क्या विश करेंगे मिस महक? गुड आफ्टरनून। आगे सहेली सत्यानाश, क्या विश करेंगे? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग? अरे बाप रे मैडम, मेरे को शूट कर डालो। यहाँ पर हम लोग विश करेंगे गुड नून। क्या विश करेंगे हम यहाँ पर? गुड नून, क्योंकि आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर 12. करेक्ट, मींस व्हाट? आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर का मतलब होता है नून के बाद का टाइम होता है। ये जो 12 to 12, लिसन टू मी, 12 to 12:15 इट इज द टाइम ऑफ नून। ये टाइम नून का होता है और उसके बाद में लगता है आफ्टरनून। और आपने अगर कभी थोड़े से भी होशियारी करके अगर यहाँ पर अगर आपने बोला गुड आफ्टरनून, तो वो अपने दिमाग में बना लेगा यस ये बंदे को अपने को रिजेक्ट करना है, इसको कंपनी में लेना नहीं। आप लोग बोलेंगे अरे इतनी अच्छी ड्रेसिंग करके गया था, अरे यार इतना अच्छे सब रट्टा मार के गया था, सब आंसर दिया, फिर भी रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि विशिंग ही गलत था। फर्स्ट पॉइंट घुसते के साथ में ही गलत हो गया, रिजेक्ट रिजेक्ट। हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग दैट यस आई हैव लर्नड समथिंग न्यू? प्लीज पुट इनटू द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में डालिए प्लीज, कितने लोगों ने आज कुछ नया सीखा है? प्लीज पुट इनटू द चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी। Yes, some people are saying yes. So ultimately this is what, thank you so much. So यहाँ पर 12 से 12 के बीच में आप लोगों को बोलना है गुड नून। उसके बाद में आप लोग आपका गाना बजा सकते हैं गुड आफ्टरनून। Are you getting the point? So this is what exactly wishing. So हमारा wishing सबसे पहले clear होना चाहिए, point number 1. Second thing we are going to go for the next, and that's what in self introduction we are going to have here next, that's what name. अब हम लोग हमारा नाम बोलेंगे। अब जैसे कि मिस्टर रमीज ने यहाँ पर मैंने देखा उनका इंट्रोडक्शन के अंदर उन्होंने उनके सिस्टर के बारे में बोला, उनके फैमिली के बारे में बोला, राइट? ओके, जो सिस्टर के बारे में, फैमिली के बारे में बोला है, यू डोंट हैव टू स्पीक अबाउट योर फैमिली इन द इंटरव्यू। रिमेंबर दिस, इंटरव्यू के अंदर फैमिली के बारे में नहीं बोलते हैं। व्हाई? इंटरनेशनली इट इज कंप्लीटली बैन टू स्पीक अबाउट द फैमिली इन इंटरव्यू। व्हाई? बिकॉज दे से यू आर गोइंग टू वर्क इन द कंपनी, नॉट योर फैमिली। आप काम करने वाले हैं, फैमिली काम करने वाली नहीं है। सो यू आर नॉट गोइंग टू मेंशन योर फैमिली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेम, अब ये नेम कैसा आएगा आपका? यस, आप लोग का नेम कैसे बोलेंगे? सो योर नेम विल बी व्हाट? इन द सेंस ऑफ फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम, दैट्स इट। उसके अंदर वो अम्मी का, बाबा का, बाप का, भाई का, माजू वाले का, आजू वाले का, किसी का नाम डालना नहीं है। फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। फॉर एग्जांपल I'm Ansar Idrisi. Ansar is my name, Idrisi is my surname. First name and the last name, that's it. I'm Mehak Khan, first name and the last name. I'm Ismail Miman, first name and the last name. I'm Ramesh Tamboli, first name and the last name, that's it. So first name and the last name will be coming there. Next one, age. अब तक हम लोग क्या बोलते थे? I'm 20 years old. Okay? अब तक हम लोग क्या बोलते थे? I'm 20 years old. Old मतलब नहीं पुराने। रमीज अपन पुराने हैं क्या? मिस्टर रमीज, मिस्टर अजय, पुराने हैं क्या सर आप? No. नहीं, अपन तो फुल डिस्को है क्या नहीं? मैं पुराना थोड़ी हूँ। So आज के जमाने में अब तक क्या बोलते थे हम लोग? I'm 20 years old. इंट्रोडक्शन के अंदर अभी आप लोग सिर्फ बोलेंगे I'm 20. I am का शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा So that's what I'm 20, I'm 50, I'm 45, I'm 13, I'm 16, I'm 18, whatever. So आपका एज आएगा. Second point is what? Your age. Name. Next point is what? Age. Okay. Next one. Age के बाद में आएगा आप लोगों का marital status. For example, I'm not married, I'm married or I'm not married. Now your marital status will be coming. Okay. अब यहाँ पर जो है कुछ लोग बोलते हैं I'm single, double, triple. नहीं भाई, ये Facebook नहीं है. Don't say single, double or triple. You're going to say that whether you are married or not married. That's it. वो मैं double हूँ, मैं single हूँ, मैं triple हूँ, वो उधर नहीं चलेगा. Why? I'll tell you. Suppose if you're going for an interview and the interviewer is the lady. वहाँ पे एक औरत बैठी है, interviewer, और आप जाकर वहाँ बोल रहे हैं I'm single. तो एक आधे बार वो आपको जूता निकाल के फेंक के मार सकती है अगर आप लड़के हैं तो. ओके, वरना वो समझेगी कि आप उसके ऊपर लाइन मार रहे हैं I'm single. ऐसे इंटरनेशनली हो चुका है. सो ऐसी गलती नहीं करना है. Next one. Now I'm Indian, I'm from Pune. Means what? Your locality will be coming there. आपका वहाँ पे locality आएगा. I'm Indian, I'm from Pune. Okay. So you're going to talk about your city and your country. That's it. I'm Indian, I'm from Pune. मैं इंडिया से हूँ और मैं पुणे से हूँ. Okay. Your country and your city. State का नाम बीच में डालना नहीं. मैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र माझा बिल्कुल नहीं. Okay. Next one is coming.
योर पेरेंट्स प्रोफेशन। अब आप लोगों को सिर्फ आपके पेरेंट्स का प्रोफेशन बोलना है। गेटिंग इट? यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर पेरेंट्स प्रोफेशन, दैट्स इट। आपको किसी और चीज के बारे में नहीं बोलना है, सिर्फ पेरेंट्स के प्रोफेशन के बारे में बोलना है, उनका नाम भी बोलना नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली होता क्या है, मम्मा रहती मुस्लिम, डैड रहते क्रिश्चियन, डैड रहते मुस्लिम, मम्मा रहती मुस्लिम, या फिर कुछ और रहता है उन लोगों का रिलीजन। सो जनरली दे डोंट स्पीक अबाउट व्हाट their names and all, they directly speak about their business, their profession. So you can say there, my father is a dash and my mother is a dash. So the sentence will be coming like this: my father is a, suppose, businessman, and my mother is a homemaker or home mentor. My father is a businessman and my mother is a home mentor. Home mentor. अब तक हम लोग क्या बोलते थे? My mother is a housewife. Correct? गलत, गलत। Housewife गलत नहीं है एक्चुअली। Housewife बहुत पुराना वर्ड है। It is like a very degrading word. मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान को हम लोग बहुत गिरा कर बात कर रहे हैं। मतलब मेरी माँ जो है वो घर की औरत है वो, मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं। मतलब मैंने चार दीवार में रहने वाली घर की औरत है। नो, यू कैन से देयर माई मदर इज अ होम मेकर, मतलब मैंने घर को बनाने वाली। माई मदर इज अ होम मेंटर, घर को मेंटेन करने वाली, घर को संभालने वाली। अभी अब्बा जाते हैं बाहर तो घर को कौन मेंटेन करता है? बाजू वाला? नहीं नहीं नहीं, मम्मा करती है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे वहां पर? माई मदर इज अ होम मेंटर। ओके, सो हाउस वाइफ नहीं बोलना है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे बोल सकते हैं माई फादर इज अ बिजनेस मैन एंड माई मदर इज अ homemaker. My father is a doctor and my mother is a homemaker. My mother is a homemaker or home mentor. हमारे लिए नया वर्ड है home mentor. Okay, so you can use such words there. तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन में थोड़ा जान आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज योर ओन प्रोफेशन। फिर आएगा आपका खुद का प्रोफेशन। आई एम अ स्टूडेंट, सो योर प्रोफेशन विल बी देयर। तो आपका खुद का प्रोफेशन जो भी रहेगा आप लोगों का, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ प्रोफेशन मीन्स, फॉर एग्जाम्पल आई एम एन इंजीनियर, सॉरी, आई एम एन engineer or I'm a student. I'm a student नहीं बोलना है, उसको क्या बोलेंगे? Student लगना चाहिए भाई आप लोग, एटलीस्ट मुंह से नहीं तो लैंग्वेज से तो फॉरनर है। Getting it? So I'm Indian, I'm from Pune, my father is a businessman and my mother is a home mentor. Now if you see here, this is your local self introduction. ये आप लोगों का local self introduction है। Getting it? ये आप लोगों का local self introduction है। इतना आप लोग locally दे सकते हो, इतना सेल्फ इंट्रोडक्शन आप लोग लोकली आपका दे सकते हो। मीन्स व्हाट? अल्टीमेटली इट विल बी रियली अमेजिंग एंड एट द एंड यू कैन से थैंक यू। ये आपका शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले आप लोगों को बोलना क्या है भाई? विश। पहले आपको विश करना है, देन यू कैन गो अहेड विद योर नेम एंड ऑल। तो अभी आप लोगों का सेल्फ इंट्रोडक्शन देखो यहाँ पर आएगा कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी हूँ, एज यू कैन सी हियर, जस्ट लेट मी शो यू हियर। सो first wishing will be there. I hope you are able to see my screen. आप लोगों को दिख रहा है? Yes. Yeah. So first wishing will be there. अभी जैसे कि टाइम क्या हो रहा है आप लोगों को ध्यान रखना है कि टाइम हो क्या रहा है। So this is what good afternoon, 4:33 हो रहा है। Means what? 4:33 you can say there. Good afternoon ladies and gentlemen. अभी जैसे कि यहाँ पे काफी सारी लेडीज है क्लास में और कुछ जेंटलमैन भी है। ओके, गलती करना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो हम लोग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया लेडीज एंड जेंटलमैन, so अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला हूँ गुड आफ्टरनून, good afternoon ladies and gentlemen. gentlemen, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग मिस्टेक करते क्या है। कुछ लोग बोलते हैं जेंटलमैन, मैन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मैन? व्हाट डू यू मीन बाय मैन? बोलना चाहिए था जेंटलमैन। जेंटलमैन, लोगों ने बोला मैन। मैन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मैन? मैन का मतलब होता है घोड़े का बाल, गधे का बाल। घोड़े का बाल, गधे का बाल। गधे के सर पे बाल रहते हैं ना, घोड़े के इधर यहाँ पे ऊपर कमर विमर पे बाल होते हैं ना, गर्दन पे बाल होते हैं ना, पूंछ के बाल होते हैं ना, टेल के, उसको हम लोग बोलेंगे मेन। अब मुझे बोलना चाहिए था गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, मतलब नहीं गुड आफ्टरनून औरतों, अच्छी औरतों और अच्छे गधे के बालों। बोलना चाहिए था अच्छे आदमी हो, बोल दिया क्या? अच्छे गधे के बाल हो। चलेगा क्या मिस्टर जय? गुड मॉर्निंग लेडीज और अच्छे गधे के बाल हो, चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। सामने वाला हंसेगा, क्यों? जब उसको मालूम पड़ेगा तो। सो वहां पे जेंटलमैन था, हम लोगों ने बोले मेन,
मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा. सो यू शुड नो वेल द मीन्स एक्सेंट. ओके, ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आगे चलकर पढ़ाने वाला हूँ. सो how are you going to start your self introduction? So good afternoon, ladies and gentlemen. Next, I'm Ansar Idrisi. Name will be there. I'm 25. I'm not married. I'm Indian. I'm from Pune. My father is a priest and my mother is a home mentor. I'm an engineer. Thank you. इसके बाद में आप लोग यहाँ पे ब्रेक मार सकते हैं. Okay. So this is what you can give here 7 points of your basic self introduction. यहाँ पे basic self introduction के आपके 7 points आप लोग दे सकते हैं. For example, good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Ansar Idrisi. I'm 25. I'm not married. I'm Indian. I'm from Pune. My father is a priest and my mother is a home mentor. I'm an engineer. Thank you. Getting it? ये आपका short self introduction हो गया यहाँ पर. So like this you can introduce yourself. आप लोग को अगर कहीं पर अगर कोई पार्टी में अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो आप ऐसा कर सकते हो. Is that clear? कितने लोगों को कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर? Any doubts to anyone? आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है इसमें? Yes. Any questions to anyone? So self introduction आप लोग बेसिक में ऐसा दे सकते हो. Yes, Mr. Ramiz. Any questions? वर्किंग प्रोफेशन के अभी लिए आएगा वो, आएगा अभी वो, मैं बताने वाला हूँ. अभी बहुत सारी चीजें Okay. बाकी है. सो ये एक शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन था. जैसे कि अभी आप लोग कोई पार्टी वगैरह में अगर आप लोग जा रहे हो तो वहाँ पर आप लोग ऐसे टाइप का इंट्रोडक्शन वहाँ पर दे सकते हो. गेटिंग इट? नेक्स्ट वन. अब यहाँ पर ये तो हमारा शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन हुआ. इसको हम लोग टोटल फुल सेल्फ इंट्रोडक्शन बना सकते हैं. नाउ वी कैन ऐड देयर सम मोर पॉइंट्स टू. अब जैसे कि हम लोग को कुछ यहाँ पे पॉइंट्स ऐड करने हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? दैट्स व्हाट माय फेवरेट कलर. अब यहाँ पे दो चीजें हैं. वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन. एक वर्किंग प्रोफेशनल का इंट्रोडक्शन आएगा और एक आएगा नॉर्मल फ्रेशर लोगों का इंट्रोडक्शन जो कि काम नहीं करते हैं. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ आर यू गोइंग टू हैव हियर. हेलो मिस्टर अब्रार. ओके, नाउ अभी जो वर्किंग प्रोफेशनल लोग हैं उन लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे कैसा? तो यहाँ तक कि वो खुद बोलेंगे. ये सबके लिए कॉमन है. इतना तो सबको ही बोलना है. ओके, आफ्टर दैट यू कैन ऐड देयर डायरेक्टली योर experience, your qualification and experience, your qualifications and experience. ये आप लोग यहाँ पर आपका qualifications and experience आप लोग ऐड कर सकते हैं. For example, I have done my masters in English. I have done my bachelor's in computer applications. I have done my Hadoop engineering. आपका जो भी कुछ qualification हुआ है आप वहाँ पर enter कर सकते हैं. Next, you can talk about your experience. अब आप लोग यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस के बारे में बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई बीन वर्किंग विद कैम्ब्रिज ट्यूटोरियल्स since 2013 as a trainer, where I have trained the professionals like doctors, teachers, lawyers, engineers, inspectors for international English and IELTS. आप ऐसा बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि अभी आप एक इंजीनियर है, राइट मिस्टर रमीज? Yeah. Correct. So you can just speak up like, for example, I've been working in what company are you working now? The math company. Okay, the map. Okay, so you can just say, okay, maths. Okay, MATH. Okay, math company. So you can just say that I've been working with math company since 2012 as a senior engineer, and I've been training the candidates as well. I've been working on escalation and deploying the softwares, and in what is the exactly profile? You can just speak about that. Okay. तो आपका जो भी प्रोफाइल रहेगा आप उसके बारे में बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन से दैट I've been working with Cloudera since 2018 as a cloud engineer, and I've been working on Scoop, Impala, Hive, and .NET as well. Apart from this one, I've been working before. I worked with a project, and that's what was on Java. I've made some projects with Concentrix based on .NET and Python. So आप ये सब चीज़ें को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं according to your qualifications and experience जो भी आपका रहेगा. So you can add there your what do we say, internships, projects, experience. तो मतलब आपका self introduction एकदम amazing बन जाएगा. Okay, you can start like, for example, आप ऐसे start कर सकते हैं. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Ansar Idrisi. I'm 25. I'm not married. I'm Indian. I'm from Pune. My father is a priest and my mother is a home mentor. I'm an engineer. I've been working with Concentrix since 2012 as a technical support engineer. I worked there till 2016, and I've been working on technical support. I've been working on customer care and supportive executives as well. Then I worked on Cloudera in 2018, and I worked there for 2 years till 2020.
as a cloud engineer, and I've been working on Scoop, Hadoop, Impala, and Hive, and there are many other things too. Apart from this one, I have done my internship before my joining the company in WNS. आप ऐसा बोल सकते हैं वहाँ पर, मीन्स यू कैन टॉक अबाउट योर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस. ओके, नेक्स्ट वन. अब जो बंदे का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं, मतलब यानी एक्सपीरियंस वगैरह जिसको कुछ नहीं है, वो ये पॉइंट्स को छोड़ देगा, वो डायरेक्टली नेक्स्ट पॉइंट पर आएगा, एंड ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट्स व्हाट माय फेवरेट कलर. सो फेवरेट कलर आप लोग वहाँ पर बोल सकते हैं. एंड सी मिस्टर रमीज, एज यू आर अ प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल, यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड देयर द पॉइंट ऑफ फेवरेट कलर, क्योंकि भाई आप वहाँ पर अगर फेवरेट कलर बोलेंगे तो थोड़ा बच्चे चले लगेंगे. ओके, सो यू आर नॉट गोइंग टू ऐड देयर द पॉइंट ऑफ फेवरेट कलर. नेक्स्ट वन, अब फेवरेट कलर बोलना है. अब जैसे कि फ्रेशर लोग हैं, फ्रेशर को और क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्रेशर नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप लोग भाजी पाला है क्या? आई एम फ्रेशर, आई एम फ्रेशर. नो, रॉन्ग. फ्रेशर को फ्रेशर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं नाइव. क्या बोलेंगे हम लोग? नाइव. ओके, जब आप लोग आपके सीवी पे टाइप करेंगे फ्रेशर लोग, एक्सपीरियंस की जगह पे आप लोग लिखेंगे वहाँ पे नाइव, तो जब सामने वाला जब इंटरव्यू के लिए जब आप लोग जाएंगे वो देखेगा, ओ माय गॉड, ये तो अपना बाप है, क्या बात है, क्या लिख रहा है ये लैंग्वेज. सो नाइव जो है वो भी डिक्शनरी में टाइप करेगा, वो बोलेगा ओ माय गॉड, ये तो पढ़ा लिखा बंदा दिख रहा है मेरे को, ये कोई ढक्कन नहीं है. Getting it? So now you're going to talk about your favorite color. So how are you going to talk about your favorite color? For example, people say my favorite color is green, my favorite color is blue, my favorite color is yellow, my favorite color is white. वो इंटरव्यूअर भी बोर हो गया रहेगा, ओ माय गॉड, सब आके वही बोल रहे हैं रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू. तो आप लोग जाकर वहां पर कुछ नया बोलेंगे. नया मतलब है नहीं, दिल से ठोकना नहीं है, बट यू आर गोइंग टू यूज योर इंग्लिश. नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर टू यू. मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, और मेरा क्वेश्चन ये है, आप लोग जब इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट क्यों करेगा वो? क्यों करेगा आपको सिलेक्ट वो? आपके पास कुछ बेटर क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ अदर्स जितने भी आ रहे हैं उनसे Very हटके good. कुछ. वेरी नाइस. हटके, यही पॉइंट है उसका. आप लोग बोले यार मेरे पास में डिग्री है ना, डिग्री सबके पास है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस भी सबके पास है, टैलेंट भी सबके पास है. आपको क्यों सिलेक्ट करेगा वो कंपनी में? बिकॉज यू हैव सम यूनिकनेस. आपके पास में कुछ यूनिकनेस होना चाहिए. यूनिकनेस मतलब ही नहीं, आपके पास में कुछ हटकर है बाकी लोगों से, आप कुछ हटकर हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल दुनिया बोल रही है माय फेवरेट कलर इज रेड 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 रेड, वो भी बोर हो गया रहेगा, ओ माय गॉड. आप जाकर वहां क्या बोलेंगे? माय फेवरेट कलर इज स्कारलेट, ओ माय गॉड. जब उसके सर पे ऐसे बड़े बड़े ओले पड़ेंगे ना इंग्लिश के वर्ड्स के, टकला हो जाएगा वहां पर वो. Getting it? So you can say there, my favorite color is scarlet instead of saying red. और रेड की जगह पे आप लोग क्या बोल सकते हैं? माई फेवरेट कलर इज रोज. दिख रहा है आप लोगों को? मीन्स व्हाट? रेड की फैमिली में से आता है. स्कारलेट इज दैट मरून. नेक्स्ट ग्रीन. दुनिया बोल रही है माई फेवरेट कलर इज ग्रीन ग्रीन ग्रीन, आप जाकर क्या बोलेंगे? माई फेवरेट कलर इज एमरल्ड. कितने लोगों ने पहली बार सुना है वर्ड ये? माई फेवरेट कलर इज एमरल्ड, माई फेवरेट कलर इज टर्कोइज, माई फेवरेट कलर इज एक्वामरीन. ओ माई गॉड. जब सामने वाले के सर पे टकले पे जब गिरेंगे ये वर्ड्स तो टकला हो जाएगा वहां पर, वो बोलेगा ओ माय गॉड, यस, someone is speaking something is really amazing. So that my favorite color is emerald, turquoise, aquamarine. आप ग्रीन की जगह पे बोल सकते हैं. नेक्स्ट वन, दुनिया बोल रही है ब्लू ब्लू ब्लू, आप लोग बोलते हैं नेवी ब्लू. रॉन्ग, नेवी ब्लू नहीं, क्या बोलेंगे हम लोग? इंडिगो. इंडिगो. ओके, माय फेवरेट कलर इज इंडिगो. स्काई ब्लू तो सबको पता ही है. नेक्स्ट येलो. येलो की जगह पे आप लोग बोल सकते हैं माय फेवरेट कलर इज लाइम, माय फेवरेट कलर इज ऑलिव. नेक्स्ट पिंक. पिंक की जगह पर आप लोग बोल सकते हैं माय फेवरेट कलर इज मैजेंटा. मैजेंटा, न्यू वर्ड. नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ ब्राउन यू कैन से बीज. माय फेवरेट कलर इज बीज. नेक्स्ट, माय फेवरेट कलर इज टैन. अभी हम लोग इंडियन लोग क्या है ना, गोरे हैं ना काले, अपनी स्किन का कलर कौन सा है? टैन. नेक्स्ट, क्रीम की जगह पे आप लोग बोल सकते हैं आइवरी. हमारे यहाँ पे लोग बोलते हैं ऑफ वाइट, हाफ वाइट, ऐसे कुछ रहता नहीं. दैट्स व्हाट आइवरी. तो आप लोगों का फेवरेट कलर आप लोग जब बोलेंगे तो वो सामने वाले टकला हो जाएगा. ओ माय गॉड, माय फेवरेट कलर इज ivory, my favorite color is cyan. Okay, my favorite color is turquoise. Getting it? So जब सामने वाला बोलेगा my favorite color is turquoise, my favorite color is cyan, so this is what exactly सामने वाला out हो जाएगा. Oh my god, someone is speaking something really amazing. Okay, next one. अब आएगा आप लोगों का next point. That's what my favorite sport. Okay,
You can talk about your favorite sport. So you can say there, for example, my favorite sport is cricket, my favorite sport is football, my favorite sport is bungee jumping, rock climbing. All right. Next point is what? Favorite color. Next, favorite sport. Okay, in your introduction, favorite color के बाद में आएगा favorite sport. Next, interest. Next point is your interest. आप आपके interest के बारे में बोल सकते हो. For example, I'm interested in calligraphy. I'm interested in antiquities. What do you mean by antiquities? Antiquities का मतलब क्या होता है? कितने लोगों को पता है? What is antiquity? Yes. अच्छा, आप लोगों ने वर्ड सुना है एंटीक पीस? एंटीक पीस सुना है आप लोगों ने? ओ माय गॉड, आप लोग प्लीज ऐसे माइक बंद करके चुपचाप बैठिए मत प्लीज, मेरे साथ में कॉन्वर्सेशन कर रही है मुझे, वरना ऐसे लगेगा कि जैसे मैं जंगल में बैठा हुआ हूँ. ओके, सो एंटीक्विटीज, आप लोगों ने एंटीक पीस सुना रहेगा. एंटीक चीजें होती है ना, वहां से आया वर्ड एंटीक्विटीज. ओके, सो आप लोग बोल सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन एंटीक्विटीज, मतलब मैं एंटीक्विटीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मतलब मुझे पुरानी चीजें जमा करना रखना मुझे बहुत ज्यादा शौक है. आप लोग बोल सकते हैं. सो यू कैन टॉक अबाउट योर इंटरेस्ट. ओके, फॉर एग्जांपल, आई एम इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, I'm interested in antiquities, I'm interested in music, I'm interested in sports, I'm interested in business, I'm interested in calligraphy, etc. Okay, interest. Next one, next point आएगा आप लोगों का likes. अब आप आपके इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे आप लोग likes का. Likes means what? अब आप लोग क्या करेंगे वहां पर likes में? What are you going to write their likes? अब जैसे कि दुनिया बोलती है I like this, I like that, I like this, I like that. अब आप लोग I like बोलेंगे नहीं, लाइक नहीं बोलेंगे. आप लोग क्या बोलेंगे उसकी जगह पर? लाइक की जगह पे हम लोग कुछ न्यू वर्ड्स यूज करेंगे. दैट्स व्हाट आई लव. और यू कैन से आई हैव पैशन फॉर, और आई एम क्रेजी अबाउट, और आई एम फोन्ड ऑफ. मतलब ये नहीं क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कि आप लोगों को कुछ बोलना था. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्या बोलते थे अब तक? I like gardening. Okay, I like gardening. अब तक हम लोग बोलते थे I like gardening. ये एकदम लोकल सेंटेंस हो गया है. I want to come, I want to go. ऐसा इंग्लिश तो कोई भी बोलता है. Yes or no? Yes or no? उसकी जगह पर हम लोग क्या बोलेंगे? Yes. I love gardening. और क्या बोल सकते हैं हम लोग? I have passion for gardening. और I'm fond of gardening. और I'm crazy about gardening. मतलब यानी बोलने का तरीका वही है, सिर्फ क्या है उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया है अपने तरीके से. एंड अ न्यू सेंटेंस हैज मेड. दुनिया बोल रही है I like gardening. आप जाकर क्या बोलेंगे? I'm fond of gardening. तो सामने वाले बोलेगा oh my god, कुछ नया वर्ड सुनने के लिए मिला है. I have passion for gardening. I'm crazy about gardening. Means what? These are the new words for that person. समझ में आ रहा है? मतलब दुनिया बोल रही है I want to go, I want to come. नॉर्मल इंग्लिश, आप जाकर एक अच्छे लेवल का इंग्लिश बोलेंगे. Getting it? Now let me tell you one more thing. मेरे एक टीचर थे. एक्चुअली मैं पहले से बहुत ज़्यादा शरीफ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे टीचर थे कॉलेज में. वो टीचर जब मैं अमेरिकन एक्सेंट में बात करता था, ब्रिटिश एक्सेंट में बात करता था, वो टीचर चिढ़ते थे. एंड शी यूज्ड टू स्कोल्ड मी. She used to scold me again and again. One day what happened? एक मर्तबा क्या हो गया? मैं कंप्यूटर लैब से बाहर निकल रहा था. मैडम ने मुझे जाते हुए देखा. मैं चुपचाप जा रहा था. मैडम ने मुझे देखा and she asked me, "Hey you." I said, मैं I. She said, "Yes you. Have you done the homework? Have you done the assignments?" I said, "Yes madam." "Where is your assignments?" मैं बोला मैडम आपका लेक्चर में पूछो ना, यहाँ पे क्यों पूछ रहे हैं? करेक्ट. पर मैंने उनको ये नहीं बोला. आई सेड डायरेक्टली. अब मैडम का लेक्चर में तो मैडम ने पूछा नहीं, मैडम ने मुझे लैब में आकर पूछ रहे हैं जहाँ पे उनका लेक्चर था भी नहीं. तो मैंने उनको मैडम को बोला इट्स इन माई सैचल. मैडम ने पूछा आपका असाइनमेंट कहाँ है? मैंने बोला इट्स इन माई सैचल, वो मेरे सैचल में. मैडम बोले व्हाट? आई सेड इट्स इन माई सैचल. मैडम बोले व्हाट? मैं बोला मैडम बैग में.
जब मैंने हिंदी में बोला बैग में, तो वो मैडम बोले ओके 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 गो। मतलब वो मैडम को सैचल का मतलब पता नहीं था। सॉरी टू से दिस। व्हाट डू यू मीन बाय सैचल? बैग होता है ना आप लोगों का, बैग, स्कूल बैग होता है ना, वो स्कूल बैग को बैग नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सैचल। क्या बोलेंगे उसको? सैचल बोलेंगे उसको, स्कूल बैग नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग सैचल। ऑलराइट। सो लोगों को इतने अच्छे लेवल का वोकैबुलरी नहीं आता है आउटसाइड, दिस इज माय गारंटी। ओके, सो दिस इज व्हाट यू गोइंग टू हैव हियर। लाइक्स की जगह पे आप लोग बोल सकते हैं आई हैव पैशन फॉर, आई एम क्रेजी अबाउट एंड आई एम फोन्ड ऑफ एटसेट्रा। ऑलराइट, अब लाइक्स के अंदर आप लोग क्या चीजें बोल सकते हैं? दैट्स व्हाट ऑलरेडी आई हैव गिवन ओवर हियर। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दिया हूँ। फॉर एग्जाम्पल गार्डनिंग, यू कैन से आई हैव पैशन फॉर गार्डनिंग, I love gardening. Okay. Next, cooking. Cooking, gardening तो सबको पता ही है, माली काम करना वगैरह। Next one, cooking. Cooking मतलब यानी खाना वगैरह बनाना. So you can say there, I love cooking. I'm crazy about cooking. I'm fond of cooking. Next one, traveling. I love traveling. I'm crazy about traveling. I'm fond of traveling, etc. Okay. मतलब मुझे traveling बहुत ज़्यादा पसंद है. I'm crazy about traveling. I'm fond of traveling. Next one, antiquities. What do you mean by antiquities? अभी मैंने बताया था एंटिक चीजें वगैरह जमा करना, कुछ लोगों को शौक होता है ना, तो दे कैन से आई लव एंटिक्विटीज, आई हैव पैशन फॉर एंटिक्विटीज, आई एम क्रेजी अबाउट एंटिक्विटीज। नेक्स्ट, रीडिंग। रीडिंग मतलब नहीं पढ़ना, पढ़ने का कहाँ अपने को शौक है ना, सो वी कैन से आई लव रीडिंग, आई हैव पैशन फॉर रीडिंग, आई एम क्रेजी अबाउट रीडिंग, आई एम फोन्ड ऑफ रीडिंग। नेक्स्ट, कैलीग्राफी। व्हाट डू यू मीन बाय कैलीग्राफी? अलग अलग फोंट में लिखने का स्टाइल में, अलग अलग स्टाइल में लिखने का कुछ लोगों को शौक होता है, देखा रहेगा आप लोगों ने। Correct? So they can say, I'm crazy about calligraphy. I'm fond of calligraphy. I'm crazy about calligraphy. I have passion for calligraphy. Next one. Sorry. Shopping. Okay. I love shopping. Shopping तो सबको पता ही है. Next, I love shopping. I'm crazy about shopping. Next, trekking. ये थोड़ा important word है. एक आता है trekking और एक आता है tracking. What do you mean by tracking? Tracking. GPS tracking. करेक्ट, जासूसी करना। ट्रैकिंग मतलब है नहीं, जासूसी करना। अब फॉर एग्जांपल अभी आप लोग को इंट्रोडक्शन में बोलना चाहिए था आई लव ट्रैकिंग, मतलब मुझे पहाड़ों पे चढ़ना पसंद है, और आपने बोला क्या? आई लव ट्रैकिंग, मतलब मुझे जासूसी करना पसंद है। आहा हा, इंटरव्यूअर आपको छोड़ेगा क्या? आपके घर तक आएगा, वो बोलेगा अरे ये तो जासूस है इसको कंपनी में अपने मत लो। गेटिंग इट? सो ट्रैकिंग एंड ट्रैकिंग, एक छोटे से मिस्टेक की वजह से पूरा मीनिंग चेंज, बूम। गेटिंग इट? सो कल मैंने आप लोगों को बताया भी था, इम्पोर्टेंस एंड इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा डिफरेंस बनाता है। सो आई लव ट्रेकिंग, 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 ट्रेकिंग मतलब यानी पहाड़ों वगैरह पर चढ़ना होता है ना, सो यू कैन से दैट आई लव ट्रेकिंग। नेक्स्ट, चैटिंग। चैटिंग का तो अपना फेवरेट है, फुल नाइट। आई लव चैटिंग, आई एम फोन्ड ऑफ चैटिंग, आई एम क्रेजी अबाउट चैटिंग। नेक्स्ट, राइडिंग। राइडिंग मीन्स व्हाट? बाइक राइडिंग वगैरह करते हैं ना बॉयज, सो दे कैन से आई लव राइडिंग, आई एम क्रेजी अबाउट राइडिंग, आई एम फोन्ड ऑफ राइडिंग। Next, news. I love news. I'm crazy about news. I'm fond of news, etc. कुछ लोगों को चटपटी खबरों को बहुत ज्यादा शौक रहता है ना, तो वो लोग बोल सकते हैं। Next, paragliding. What is paragliding? What is paragliding? Yes. ये पैराग्लाइडिंग क्या होता है? Can anybody please tell me? That in Mahabaleshwar and all, there are some paragliding. करेक्ट, आप लोगों ने देखा Oh, रहेगा, देखो yeah, हवा, हवा के parachute अंदर लगा ऐसा, करेक्ट, हवा में पैराशूट में डाल के ऐसे नीचे छोड़ते हैं आदमी को। That's what paragliding. So you can say, I love paragliding. I have passion for paragliding. I'm crazy about paragliding. Next, horse riding. Horse riding. Ghudsavari. I can say, you can say, I love horse riding. I'm crazy about horse riding. I have passion for horse riding. Next, skiing. What is skiing? What is skiing? Skiing क्या होता है? ice skiing. करेक्ट, आइस स्केटिंग होता है ना, आइस वगैरह के अंदर देखो आप लोगों ने देखा रहेगा मूवीज वगैरह में आइस स्केटिंग वगैरह करते हैं। दैट्स व्हाट स्कीइंग। सो यू कैन से आई लव स्कीइंग, आई एम क्रेजी अबाउट स्कीइंग, आई हैव पैशन फॉर स्कीइंग, एटसेट्रा। सो आप लोग लाइक्स के अंदर यहाँ से कुछ चीजें उठाकर
डाल सकते हैं आपके इंट्रोडक्शन के अंदर। एक दो चीजें आप लोग यहाँ से उठाकर बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? डिसलाइक। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आप लोगों का डिसलाइक। ओके, नाउ डिसलाइक के अंदर आप लोग क्या बोलेंगे? यस, डिसलाइक में क्या आएगा आपके? अब डिसलाइक के लिए हम लोग क्या बोलते थे? आई डिसलाइक, आई डिसलाइक, आई डिसलाइक। अब डिसलाइक की जगह पे डिसलाइक मत बोलिए प्लीज। फॉर एग्जाम्पल अब तक हम लोग क्या बोलते थे? आई डिसलाइक स्मोकिंग, करेक्ट? ये एकदम टुच्चा वर्ड हो गया, एकदम टुच्चा सेंटेंस है ये। इसकी जगह पे आप लोग कुछ दूसरा बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिसलाइक की जगह पे हम लोग कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई अबहॉर। प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई अबहॉर और आई डिटेस्ट और आई लोड, आई लोड। ओके, नाउ अभी जैसे कि हम लोग बोलते थे अब तक कि आई डिसलाइक दिस, आई डिसलाइक दैट, उसकी जगह पे हम लोग क्या बोलते थे? आई हेट। हेट जरा थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, उसकी जगह पे आप लोग दूसरे वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई अबहॉर, आई डिटेस्ट, आई लोड। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग को अगर किसी को बोलना है मुझे इससे सख्त नफरत है, तो आप लोग क्या बोलते थे? आई हेट इट। वो हेट की जगह पे आप लोग क्या बोल सकते हैं? आई लोड इट। सामने वाले को लग रहा है, लगेगा कि आई लव इट बोल रहे हैं आप लोग, पर आप लोग बोल क्या रहे हैं? आई लोड। लोड मतलब नहीं नफरत करना, नापसंद करना। डिटेस्ट दूरी रखना, नापसंद करना। नेक्स्ट और नापसंद करना, दूरी रखना, सेम। गेटिंग इट? सो यू कैन से देयर आई अबहॉर smoking, I detest smoking, I loathe smoking. So I loathe smoking, I detest smoking, I abhor smoking. Okay, तो आप लोगों के पास में न्यू वर्ड्स आ जाएंगे वहां पर। I abhor smoking, I loathe smoking, I detest smoking। मतलब यानी एक सिंपल सेंटेंस था आई डिसलाइक स्मोकिंग, उसको आप लोगों ने एक अच्छे लेवल से सेंटेंस को बना दिया है। मीन्स व्हाट? आपके सेंटेंस में एक वजन डाल दिया आप लोगों ने। ओके ओके, सो आई लोड स्मोकिंग, आई अबहॉर स्मोकिंग, आई डिटेस्ट स्मोकिंग। मतलब यानी डिसलाइक की जगह पे आप लोग ये वर्ड्स को वहां पर यूज कर सकते हो। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। नाउ अब यहाँ पर डिसलाइक के अंदर हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंट्रोडक्शन में हमारे आई हैव गिवन सम पॉइंट्स ओवर देयर, यू कैन गो थ्रू देम। फॉर एग्जांपल these are the points for dislike. All right, for example terrorism, I dislike terrorism or I loathe terrorism, I abhor terrorism, I loathe terrorism, I abhor terrorism, I detest terrorism। terrorism मतलब दहशतगर्दी, दहशतवाद, आतंकवाद। नेक्स्ट वन ग्लोबल वार्मिंग, आई लोथ ग्लोबल वार्मिंग, आई अबहॉर ग्लोबल वार्मिंग, आई डिटेस्ट ग्लोबल वार्मिंग। आप लोग ऐसा बोल सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स व्हाट? अर्थ का सत्यानाश वगैरह करना होता है ना, कटिंग द ट्रीज, मेकिंग पोल्यूशन। नेक्स्ट आई लोथ पोल्यूशन, आई डिटेस्ट पोल्यूशन, आई अबहॉर पोल्यूशन एटसेट्रा। पोल्यूशन आलूदगी, गंदगी। नेक्स्ट स्मोकिंग, यू कैन से आई लोथ स्मोकिंग, आई अबहॉर स्मोकिंग, आई डिटेस्ट स्मोकिंग। अब दुनिया क्या बोल रही है? आई डिसलाइक स्मोकिंग। आप उसकी जगह पे कुछ अच्छा वर्ड बोलेंगे। जब वो आप लोग अच्छा वर्ड बोलेंगे तो लोगों को पता चलेगा ओ माय गॉड ही इज स्पीकिंग रियली समथिंग ग्रेट इंग्लिश। नेक्स्ट वन करप्शन, भ्रष्टाचार। स्मोकिंग तो सबको पता है। अबरार भाई कौन सा ब्रांड है अपना? सुट्टा? ब्रांड नहीं भाई, हाँ, नो ब्रांड, नो ब्रांड, नो ब्रांड, नो ब्रांड, सच्ची। डॉक्टर दिस इज माय ओल्ड स्टूडेंट डॉक्टर अबरार। वेल ओके, सो I'm enjoying after Yes. a long time. I'm enjoying Yeah, after yeah. a long time. Really? Nice to hear you. Nice to hear you again. Yeah, thank you so much. Glad to see you with me again. Okay. हमारे जनाब जो ये मिस्टर अबरार बॉम्बे से हैं and he's a doctor, MBBS doctor. I think you are practicing right now, right? No. I'm studying right now. There is exam in 1 month or so that's why I'm not Okay. practicing. I had practiced Okay. last year for 1 month. Okay. For No, 1 actually I month saw. and 1 week. Okay. Correct. Actually, I saw your status and it was what something you were practicing about COVID. Yes. That is for last year, no? That is last year. Yeah, right. Not this year. Correct. Okay, keep up. May Allah grant you success. Okay, have a look here, please, all of you. I mean, so corruption. So you can say I detest corruption, I loathe corruption, I abhor corruption, etc. मतलब यानी मुझे नफरत है करप्शन से। करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी। नेक्स्ट illiteracy. I loathe illiteracy, I abhor illiteracy, I detest illiteracy. What do you mean by illiteracy?
What do you mean by illiteracy? नाखवानदगी. माशाल्लाह, खतरनाक उर्दू बोलती है मैडम आप. मतलब यानी जहालत. ओके, मतलब यानी अडानी पने. ये रहते हैं ना, पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं, जाहिल रहते हैं, सो उसको हम लोग बोलेंगे illiteracy. So that's what I loathe illiteracy, I abhor illiteracy, I detest illiteracy. Next one, crimes. Now you can say there, I loathe crimes, I abhor crimes, I detest crimes, etc. Okay, crimes गुनाहगारी. Next, scam. Scam मतलब यानी घोटाला. Okay, for example, I loathe scams, I abhor scams, I detest scams. Next, racism means what? जातिवाद. So you can say there, I loathe racism, I abhor racism, I detest racism. Next, inequality मतलब यानी ऊंच नीच करना, जात पात करना. That's what inequality. So you can say there, I loathe inequality, I abhor inequality, I detest inequality. Next, hypocrisy, दोगलापन, दोन तोंडी, dual character personality, मुनाफिक. दो मुंह के लोग होते हैं ना, आगे कुछ बोलता है, पीछे कुछ बोलता है. That's what hypocrites. So you can say hypocrisy. I loathe hypocrisy, I detest hypocrisy, I abhor hypocrisy, etc. So you can add there some points from your dislike. Okay, यहाँ पे से आप लोग dislike लेकर बोल सकते हो. Alright, let's go further. Next point आएगा हमारा introduction में. Dislike हो गया हमारा. Next point is what? Likes and dislike done. Best author, best poet. अगर आपका कोई best author है, best poet है तो ही बोलना है, नहीं है तो जबरदस्ती बोलना नहीं. झूठ बात करना नहीं. अगर आप लोगों ने थोड़ा भी झूठ कभी बोला मतलब आप लोग लटक जाएंगे. ओके, बाय द वे हम लोग बाकी का कंटिन्यू कल करेंगे, बट जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बोलना चाहता हूँ. आप लोग को स्टोरी सुनना पसंद है? Yes. यस, सिर्फ एक मैडम बोल रही है यस, बाकी सब लोग सो रहे हैं. ओके ओके Yes. ओके ओके. सो इफ यू सी हियर, Yes. कभी बस अगर आप लोग देखेंगे कभी भी झूठ बात करना नहीं, कभी भी झूठ बात करना नहीं, गलती से भी झूठ बात नहीं करना, और स्पेशली इंटरव्यू वगैरह में तो करना ही मत. व्हाई? बिकॉज द मोमेंट व्हेन यू आर गोइंग टू लाई यू विल बी कॉट. जब आप लोग झूठ बात करेंगे आप लोग पकड़े जाएंगे. तो झूठ बात बिल्कुल भी गलती से करना नहीं. नाउ लेट मी टेल यू वन स्टोरी. एक मेरा इंसिडेंट हुआ था जो कि रियल है और एक स्टोरी है. तो पहले मैं रियल इंसिडेंट बता देता हूँ. वंस व्हाट हैपेंड, आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू. मैं एक इंटरव्यू के लिए गया था, डोमेस्टिक इंटरव्यू था. जॉब तो मुझे नहीं करना था, पर मैं सीखने के लिए गया था कि क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या नहीं करते हैं. सो यूनिवर्सल इंटरव्यू चल रहा था वहाँ पर. मतलब मैंने एक साथ में 4 लोगों का इंटरव्यू था, तो मैं भी था वो इंटरव्यू के अंदर. तो वहाँ पर 2 मैडम लोग थे, 2 सहेली लोग आए हुए थे, फ्रेंड्स. तो पहली सहेली ने क्या किया, इंट्रोडक्शन में वो बोली आई लाइक गार्डनिंग, सॉरी आई लाइक रीडिंग. उसका सुनने के बाद में दूसरी सहेली बोली मैं भी रीडिंग बोलती हूँ, आई लाइक रीडिंग. अब वो जो इंटरव्यूअर थी उसने उन लोग को पकड़ लिया मतलब नहीं, वो पॉइंट उसने पकड़ लिया. वो इंटरव्यूअर बोली यू सेड दैट यू लाइक रीडिंग. शी सेड यस. व्हाट डू यू लाइक टू रीड? आपको क्या रीडिंग पसंद है? शी सेड आई लाइक टू रीड पोएम्स. इंटरव्यूअर ने बोला कैन यू प्लीज टेल मी अ पोएम, एक पोएम बोल के दिखाओ. अब वो बेचारी ने कभी पढ़ा होगा पोएम तो बोलेगी ना, वो तो खाली ऐसे ठोक रही थी आई लाइक रीडिंग. कभी झूठ बात करो मत. अब वो मैडम को वहां पर बोलने के लिए आया ही नहीं. क्या कहाँ से बोलती थी पोएम? गाना गाती थी क्या? नहीं. जब वो मैडम ने वहां पर पोएम नहीं बोला तो सामने इंटरव्यूअर ने क्या किया, उसको बोला गुड बाय, अब आप जा सकते हैं. गेटिंग इट? सो झूठ बात करना नहीं, आप लोग फंस सकते हैं. नाउ लेट मी टेल यू वन सिंपल स्टोरी. Once what happened, there were 4 friends. एक मर्तबा की बात है, 4 दोस्त लोग थे, फुल टंगेश दोस्त लोग थे एकदम. अबरार, मुजम्मिल है कि नहीं, नीलेश, पृथ्वीराज, ऐसे टाइप के दोस्त लोग थे 4. फुल मजाक मस्ती एकदम एंजॉय. एक दिन क्या हुआ, रात में वो लोग घूमने के लिए गए. हॉस्टल में रहते थे. रात में मस्त पिए डांस विंस किया, एंजॉय किया. और जैसे सुबह में 5 बजे उन लोगों को याद आया, दे गॉट टू नो दैट ओ माय गॉड टुडे वी हैव द एग्जाम, आज हमारा एग्जाम है. सो दे रश टू द कॉलेज यस अगेन. वो लोग कॉलेज को भागते आए. जब वो लोग आए उन लोगों ने देखा ओ माय गॉड टुडे वी हैव द एग्जाम एट 8 o'clock एंड वी हैवंट स्टडीड इवन अ सिंगल पेज, वी हैवंट स्टडीड इवन अ सिंगल लेसन. हम लोगों ने एक लेसन भी स्टडी नहीं किया है. अब करना तो क्या करना. तो उन लोगों ने क्या किया, ऐसे थोड़ा शरीफ जैसा मुंह बनाया, रोते ऐसा मुंह, और चले गए कहाँ पर, प्रिंसिपल के पास में. दे वेंट टू द प्रिंसिपल and they said that sir we are really sorry yesterday we went to the hospital to see his grandmother. उसमें से क्या बोला एक ने,
कि हम इसकी ग्रैंड मदर देखने के लिए हम लोग कल हॉस्पिटल में गए थे, एंड वाइल कमिंग बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल our car's tire got flat, it got punctured, and that's why we came to the hostel very late and we haven't studied even a single lesson. We are really sorry. Can you please grant us 3 days holiday? उन लोगों ने बोला कि सर हम लोग कल जब गए थे इसके ग्रैंड मदर को देखने के लिए, आते टाइम पे हमारे कार का टायर पंक्चर हो गया, तो हम लोग जो लेट आए कॉलेज को, हम लोग जब लेट आए तो हम लोगों ने स्टडी नहीं किया है, आप प्लीज़ हमको कुछ दिन दीजिए, हम लोग स्टडी करते हैं और फिर हम लोग एग्जाम देते हैं। प्रिंसिपल जो था वो समझ गया कि ये लोग जो है टोपी डाल रहे अपने को, बोले ठीक है। प्रिंसिपल सेड ओके यू विल गेट 3 days हॉलीडे, आफ्टर 3 days योर एग्जाम विल बी देयर, आप चारों आना 3 दिन के बाद में एग्जाम देने। दे वर वेरी हैप्पी, ओ माय गॉड अपने को तो अभी 3 दिन मिल गए, फुल पढ़कर आएंगे हम लोग। 3 days they studied very hard. After 3 days they came to the principal. The principal took them to the examination hall. प्रिंसिपल ने क्या किया, द प्रिंसिपल मेड देम टू सिट इन डिफरेंट ब्लॉक्स। प्रिंसिपल ने चारों को अलग अलग क्लास में बिठाया। दे वर स्टिल हैप्पी, वो लोग बोले हम तो पढ़ कर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग बिठाया तो अलग बिठा। बट द प्रिंसिपल हैज गिवन देम द क्वेश्चन पेपर विथ ओनली 2 questions. प्रिंसिपल ने उन लोग को जो क्वेश्चन पेपर दिया उसके अंदर सिर्फ 2 questions थे। 1 mark के लिए क्वेश्चन था क्या, व्हाट इज योर फुल नेम, एंड 99 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था विच टायर गॉट फ्लैट, कौन सा टायर पंक्चर हुआ था, कौन सा टायर पंक्चर हुआ था भाई, आप समझे, स्टोरी समझ में आया आप लोगों को? हेलो, यस सर। स्टोरी समझ में आया क्या हुआ है वहां पर? Yes, लेकिन वहां पर sir. प्रिंसिपल ने क्या किया, उन लोगों को कुछ नहीं पूछा, उसने पूछा कौन सा टायर पंक्चर हुआ था। अब उसमें से एक ने लिखा राइट का टायर हुआ था, एक ने लिखा लेफ्ट का टायर हुआ था, एक ने लिखा पीछे का हुआ था, दूसरे ने लिखा दूसरे साइड का हुआ था, चारों के चारों लटक गए। मतलब यानी क्या था, झूठ बात किया उन लोगों ने कि हमारा टायर पंक्चर हुआ था, पर हुआ था क्या टायर पंक्चर? झूठ पकड़ा गया। करेक्ट, झूठ पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया और जूते भी खा लिए। सो ऑलवेज रिमेंबर नेवर एवर लाई, क्योंकि वो आपका बाप है। कभी भी एक बात याद रखना, वो प्रिंसिपल था, वो अपना बाप था। वैसे इंटरव्यूअर जो रहता है जिसको आप लोग एड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, वो ऑलरेडी आपके ऐसे 10,000 डेढ़ शाने को साथ में खेल कर बैठा हुआ होता है, तो उसको एड़ा बनाने की कोशिश करना नहीं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सो नेवर एवर लाई। बाय द वे, आज के लिए हमारा लेक्चर यहाँ पर ओवर होता है। विल सी यू टुमारो एट 4 o'clock once again. Okay, this week is absolutely free. You can come and you can invite your other friends, girlfriends, boyfriends, आजू वाला, बाजू वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, सबको आप इनवाइट कर सकते हैं। For this week we have free classes. Okay, we'll see you tomorrow at 4 o'clock once again. Cheerio. ये चीरियो का फंडा क्या है मैं आपको कल बताऊंगा। Okay, bye bye. 5 o'clock batch, please join once again. Okay, thank you.